today he is one of my best friends since 2000, and he was my business partner also for some time. And now we are there, and all these are my counselors. So, no? Wonderful, wonderful. Angha Chaudhary is also joined just now. Angha Chaudhary, she is a graphologist, handwriting expert, as well as HR professional, and she is also one of my best friend. And currently, we are partnering together. Wow. So just before we start, I'll take a picture for our commune. Can I request everyone who can to turn on their cameras? If anyone can turn on their cameras, yeah. Hello. Hello. Hello, Anavi. My name is not Anavi, it's Anvi. Anvi, thank you for telling me. It's a beautiful name. Thank you. So I just thank you. Hi Rupali, we were just going around and Mahesh and Mohanji was introducing his team to us. So Rupali, thank you, Mansi. Yes, yes, Mansi. So please, Yes. yeah, would you like to share? Yeah, go ahead. Namaskar, Mohan sir. Hi, namaskar. Namaskar. So, she was already here. Okay, okay. I actually have issues. It's raining very heavily here, so that's the reason I got. Just a second, I'll be back. Yes, sure, Mohan. Yeah, I'm back. Yeah, thank you. Rupali, are you here? Rupali, she's yeah. Yeah, I'm here. Sorry for the network issue. So I invite Mansi to next as we have. Can you just first about Hero is Born? Sure, thank you, Rupali. So our program, A Hero is Born, is a program where we work with children from the age of 8 to 13.
and we help them discover what is their unique potential, and we nurture it. It's almost a 12-week program, and one of the salient features is we work on their strengths, on their weaknesses, on what is their crux of their journey. Sometimes what is their crux of their journey in this life, and also sometimes, you know, from past lives. So all the sessions are with the kids, but we also have a one-on-one session with the parents where we discuss through astrology what is their crux of their life. And one of the final stages of this program is where they interact one-on-one with a hero role model. So for Sujal, we have especially chosen Dr. Mohan because we felt that he was the right inspirational role model for Sujal. And so I welcome Sujal and Dr. Mohan Pakre to this forum, and everyone who's joined. Rupali has been Sujal's coach throughout this journey, so big salute to her commitment. And Rupali, should we start with the interview? I think that, Yes. yeah. Sujal? Yeah. Actually, even Sujal is in a in a rural area. So, Yeah. but so please, Dr. Pakre, I'm audience. Sujal? Rupal, you are not audible. Even Sujal also not audible. Yeah. सुजल ऍक्च्युली आतापर्यंत कॅमेरावर होतो आपण. Hi. हाय सुजल. Uh, Yeah, there he is. Sujal, you can start now. सुजल तुझा आवाज येत नाही. Sorry, today it looks like a lot of rain issues and all. Yeah, today here, even at my place also it was raining heavily, and just 1 hour before it has finished. Sujal? Rupali, should we call him or? Yes. Hello. हाँ सुजल ऐकू येत आहे. हाँ. हाँ सुजल, perfect. Can you start? हेलो सुजल. हाँ, मैं बता रहा हूँ. हाँ ठीक है. नमस्ते, मेरा नाम सुजल है. आज मैं आपको डॉक्टर मोहन पाकरे से मिलाना चाहता हूँ. सर, आपको मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? Yeah, sure. Why not? पूछ सकते हैं. आपके जो फाइव मिनट्स रेंज नहीं है.
हेलो हेलो Hello, Sujal. We can hear you. हेलो Sujal, आम्हाला ऐकू देत आहे. Go ahead. आपके जो अरे वीडियो चालू नमस्ते बोलना पहले आपके जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बने उनके बारे में आपके जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बने हैं उनके बारे में मुझे बताओ। अरे तू मैं चालू करना रे या श्योर, मैं मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में आपको बताऊंगा। क्या मानसी जी, कुछ क्या हुआ इंट्रोडक्शन है चाहिए उसके लिए? मोहन जी, आप थोड़ा बता दीजिए, फिर मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ। You can start so that immediately then I can connect with the world record. Sure. Yes, let me introduce Dr. Mohan Pakre. okay. Professional Yes. educator, and the most exciting thing for all the kids is in the book of records, in the OMG book of records, for helping 5,000 students overcome the fear of maths. So it is like most exciting. We are more eager to learn about that from you. And he is also Dr. Mohan Pakre. He is also by life coach, a business coach, NLP coach, researcher, and a mathematician. I would rather call it a magician, a self-esteem coach, psychotherapist, coach, graphologist. Like it goes on and on, like. Yes, Sujal? Yeah, thank you, Rupali ji. क्या So let me give some ideas. कुछ ideas मैं आपको बताना चाहता हूँ regarding my world records. मेरी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, एंड दोनों वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मेरे मैथमेटिक्स में है. मैथमेटिक्स इज माय पैशन. माय फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड इज fastest time to create Pascal's triangle by human formation. एंड ये जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड हमारा 2015 में हो गया. 15th October 2015. That was the first death anniversary of Dr. APJ Abdul Kalam sir after his death, and we had dedicated this world record to him. और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, ऐसे टोटल 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुक्स में उसका एंट्री हो गया. इट वाज हैपेंड इन मुंबई, गोरेगांव. Pascal's triangle by human formation, that was the title of this world record. And regarding this Pascal's triangle, actually most of the people are not aware, क्योंकि हमने जब वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हम लीडर्स चुन रहे थे, दैट टाइम मैं मोर देन 500 मैथमेटिक्स के टीचर्स मुंबई के उनको इनवाइट किया था, उनको चेक करने के लिए कि कितने लोगों को मैथमेटिक्स में से पास्कल्स ट्रायंगल मालूम है. एंड मोर देन 95-97% टीचर्स ने बोल दिया मैथमेटिक्स के कि ये कंसेप्ट ही हमें मालूम नहीं. तो दैट इज द समथिंग ग्रेट थिंग आई गॉट कि हार्डली 2-3% लोगों को स्लाइटली इंफॉर्मेशन है. एंड दैट कंसेप्ट we worked on that, and उस सब कंसेप्ट के ऊपर हमने काम करके एक अच्छा सा वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया. we completed first 25 rows of this Pascal's triangle by human formation in 7 minutes and 45 seconds.
एंड उसका हमने रिपीट हिस्ट्री भी कर दिया है. आवर सेकंड रिकॉर्ड ऑल्सो इन द सेम थिंग. इट इज इन 2019. हमारा अपना लॉकडाउन से जस्ट 1 month बिफोर, एंड वी कंप्लीटेड इन 6 minutes and 7 seconds. तो हमने हमारा ही खुद का रिकॉर्ड वहां पे ब्रेक कर दिया है. एंड वन मोर रिकॉर्ड जो मैथमेटिक्स के रिलेटेड था कि मैथ्स का फियर कंप्लीटली वैनिश करना है, डिसअपियर करना है, और बच्चों को एनकरेज करना है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. एंड इन दैट केस, in 1 month we trained almost more than 5,000 students. 17 schools से करीबन 5,500 students were attended this program, this test as well as training program. And in that हमने बच्चों का मैथ्स का फियर कैसे निकलता है. So based on that we had some training programs. So this is about my world record. सुजल क्या? सुजल आपका सेकंड क्वेश्चन पूछ सकते हो आप. मेरा दोस्त मैथ से डरता है, तो मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? सर, बोलो सुजल, मेरा आवाज आ रहा दोस्त मैथ डरता है, मेरा दोस्त मैथ से डरता है, मैं उसको कैसे क्या मदद कर सकता हूँ? ओके. आप डरते हैं मैथ से? हाँ. ओके. तो मैथ्स में डरने की कोई जरूरत नहीं है. अगर आपको चलना आता है, बोलना आता है, खेलना आता है और रास्ता क्रॉस करना आता है, तो दैट इज माय स्ट्रैटेजी. अगर आप चल सकते हैं, अगर आप बोल सकते हैं, अगर आप खेल सकते हैं और अगर आप रास्ता क्रॉस कर सकते हैं, देन यू आर जीनियस इन मैथमेटिक्स. बिकॉज रास्ता क्रॉस करना या ग्राउंड पे अगर हमें बॉल भी थ्रो करना है तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. हमें मालूम नहीं कि उसके पीछे का साइंस क्या है, मैथमेटिक्स क्या है. जस्ट एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि सपोज आप और आपका फ्रेंड यहाँ पे ऐसा खड़ा है, ओके, और यहाँ से ये जो फ्रेंड है, ये फ्रेंड को बॉल थ्रो करना है आपके पास. आप यहाँ हैं और आपका फ्रेंड यहाँ है. सो योर फ्रेंड इज थ्रोइंग बॉल टू यू. तो ये बॉल कैसे ऐसा स्ट्रेट में जाएगा क्या? सर, आवाज ब्रेक हो रही है. सर, आवाज ब्रेक हो रही है. सुजल वो आपकी तरफ से है, हमें क्लियरली सुनाई दे रहा है. सुजल, आई थिंक आप थोड़ा सा रेंज में आके बैठे तो दैट विल बी बेस्ट फॉर यू. सर, आवाज ब्रेक हो रही है. सुजल आपका कैमरा ऑफ करिए, शायद आपको ज्यादा. I think due to range, he is unable to communicate. हाँ, ऑल्सो ना वो बहुत रूरल जगह पे है. Okay, okay. बहुत रूरल जगह पे बेस्ड है, तो इसीलिए. Yeah, he has stepped out for a minute. I'm so sorry about this, Mohanji. I think he has come back again. Yeah, he has come back again. For him, we can have one more chance also. Don't worry about it. Okay, thank you. It's my generosity towards Sujal. Yeah, thank you so much. Yes, Sujal. Go on. सर, हमने सुना है कि आपका बचपन बहुत तकलीफ से गुजरा है. आपके बचपन के बारे में हमें बताइए.
ओके, श्योर। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपका पहला जो क्वेश्चन था जो आपने मिस कर दिया उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स का डर जो है उसको भगाना है तो क्या चीजें जानना जरूरी है, राइट। एक मैथमेटिक्स का कंसेप्ट अगर आपको ये पता चल गया देन आपको कभी भी मैथमेटिक्स का डर नहीं लगेगा। तो पहली चीज है पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल बहुत सिंपल चीज है। अगर आपको 1 2 3 इतना भी मालूम है ये 3 नंबर, फिर भी आप पास्कल्स ट्रायंगल के 10 स्टैंडर्ड तक के फॉर्मूलेज याद रख सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द ब्यूटी ऑफ पास्कल्स ट्रायंगल। और इस अनफॉर्चुनेटली पास्कल्स ट्रायंगल इट इज नॉट इन सिलेबस, करिकुलम में नहीं है, बट यू कैन जस्ट गूगल इट, आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मानसी जी, अगर आपको कुछ भी सपोर्ट चाहिए इन योर सेशंस टू टीच पास्कल्स ट्रायंगल तो मैं 10 मिनट के लिए आके गेस्ट सेशन दे सकता हूँ, सो दैट एवरीबॉडी फ्रॉम योर सेशंस कैन अंडरस्टैंड पास्कल्स ट्रायंगल। और उसके बाद आप मोहित खुद जी, हमारे बच्चे थ्रिल्ड हो जाएंगे। हम डेफिनेटली 10 मिनट्स नहीं, हम आपको रियली एक सेशन के लिए बुलाएंगे। आप हमारे सारे बच्चों को सिखा सकते हैं। They will be actually there are lots of kids who are very interested. yes, तो actually definitely. पास्कल्स ट्रायंगल सीखने के लिए 2 मिनट काफी है। अरे वाह वाह। और उसको इलेबोरेट करने के लिए एडिशनल 5 to 7 मिनट, इसलिए मैंने आपको 10 मिनट्स का स्लॉट मांगा। So you can park that slot in any of your training programs. That is possible. Okay. And second important thing, पास्कल्स ट्रायंगल के अलावा मैंने बता रहा था कि 2 फ्रेंड्स है यहाँ पे, आप यहाँ हैं, आपका फ्रेंड यहाँ है, और यहाँ से अगर बॉल थ्रो करना है तो ये बॉल ऐसा स्ट्रेट नहीं जाएगा, इट विल गो लाइक दिस, राइट, कर्व करके बॉल जाएगा। तो इसके पीछे मैथमेटिक्स कहाँ आता है? तो मैथमेटिक्स आता है कि ये जो कर्व आएगा वहां पे दिस विल बिकम एज अ आर्क इन ज्योमेट्री। अगर आर्क है तो सर्कल आ गया, सर्कल आया इसका मतलब उसका सेंटर कहीं तो अंडरग्राउंड रहेगा, जमीन के नीचे, राइट। एंड ये जो 2 पॉइंट है, दीज 2 पॉइंट्स, और उसके नीचे जो अंडरग्राउंड में जो हमारे जमीन के नीचे अंदर कहीं तो उसका जो सेंटर है, वो सेंटर को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो वहां पे एक एंगल क्रिएट हो जाएगा लाइक दिस, राइट, एंड दैट एंगल इज थीटा। if you are considering that angle is theta, we don't know exactly what exactly angle is, तो ये एंगल आएगा थीटा, और यहाँ से ये आ गया कर्व, तो हमारा बॉल यहाँ से ऐसे जाएगा यहाँ पर, राइट ना, थ्रो किया तो यहाँ से ऐसा कर्व करके चला जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है मैथमेटिक्स में जो हम 10th स्टैंडर्ड में सीखते हैं कि ये कर्व का एंगल कैसे निकालना है, कर्व का लेंथ कैसे निकालना है, इसमें कितना स्पीड से अभी जाएगा, ये कितना स्पीड से जाएगा बॉल, अगर हम यहाँ से थ्रो करेंगे तो आपके फ्रेंड के पास जाएगा बॉल या आपके पास जाएगा बॉल? नहीं। नो गारंटी, नो गारंटी। लेकिन अगर वो सही डायरेक्शन में दे दिया तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो वो 10th स्टैंडर्ड में हमें सिखाया जाता है कि यहाँ पे जो सर्कल आता है, सर्कल को एक टच करके अगर हम लाइन निकालेंगे तो उसको टैंजेंट कहते हैं, राइट ना। ये सब कुछ अभी आप बोल लो मे बी आपको बाउंस हो जाएगा, मैं जो मैथमेटिक्स के अंदर का स्टोरी बता रहा हूँ, और ये बाउंस होना बहुत जरूरी है बिकॉज आपको इसमें से कुछ भी मालूम नहीं है, बट स्टिल यू आर थ्रोइंग बॉल और आपके दोस्त के हाथ में जाता है ना। हाँ एग्जैक्टली इसका मतलब ये है कि योर ब्रेन इज ऑलरेडी ट्रेन्ड फॉर दिस मैथमेटिक्स। इतना बड़ा कैलकुलेशन जो आपको सिखाया भी नहीं है किसी ने, और 10th स्टैंडर्ड के 12th स्टैंडर्ड के इंजीनियरिंग के बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं। ऐसा डिफिकल्ट मैथमेटिक्स हम ग्राउंड पे खेल के वहां पे परफॉर्म करते हैं, और हम डायरेक्टली थ्रो करके स्टंप आउट कर देते हैं, हम डायरेक्टली कैच ले लेते हैं, कैच आउट कर लेते हैं बच्चों को क्रिकेट खेलते समय। तो यही आपको फोकस करना है कि अगर मुझे क्रिकेट खेलने आता है, अगर मुझे बॉल थ्रो करना आता है, दैट मीन्स आई नो मैथमेटिक्स ऑल कॉन्सेप्ट्स, दैट्स इट। रास्ता क्रॉस करना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मानसी जी, यू कांट बिलीव फ्रॉम 2008 आई हैव चैलेंज, अभी तक इंडिया में किसी ने वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया है। अच्छा। There are so many IITians, IIMs and मैथमेटिक्स के बहुत सारे डॉक्टरेट्स हैं,
लेकिन अभी तक किसी ने वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। चैलेंज ऐसा है कि आई विल बी गिविंग यू 12 आवर्स, मॉर्निंग 8 to night 8। हाँ आपको एक कोई भी एक रोड सिलेक्ट करो जहाँ पे मिनिमम ट्रैफिक है, अच्छा ओके। एंड ये ट्रैफिक के एक साइड, रोड के एक साइड पे आपको खड़े रहना है। और जो कैलकुलेशंस रोड क्रॉस करते समय हमारा ब्रेन करता है नेचुरली एवरी डे, तो सेम आपको कैलकुलेशंस ऑन पेपर करना है मैन्युअली एंड क्रॉस द रोड। अमेरिकन एंड इस यहाँ पे ये रोड पे कोई भी हमारा बड़ा व्हीकल या स्पीडी व्हीकल नहीं आएगा। एक बच्चा साइकिल लेके 100 मीटर दूरी से आएगा, वो बच्चा आपके पास आने से आके आपको क्रॉस करके जाने से पहले आपको रोड क्रॉस करना है। इज इट पॉसिबल? नॉर्मली अगर हमें करना है कि अगर इवन कार भी अगर वहां से आ रही है 100 मीटर दूरी से, तो हम रास्ता क्रॉस करते हैं नहीं करते? करते हैं। इट्स वेरी इजीली वी कैन डू इट। लेकिन उसके पीछे हमारा ब्रेन कितना फास्ट काम कर रहा है, क्या कैलकुलेशंस कर रहा है। गाड़ी को देखने के बाद इमीडिएटली हमारा आईज डिटेक्ट करता है एज ए रडार, वो देखता है कि वो गाड़ी का स्पीड कितना है। क्या हम स्पीडोमीटर लेके जाते हैं? नहीं। नहीं। लेकिन हमें गाड़ी को देखने के बाद पता चलता है ना गाड़ी का स्पीड कितना होगा। हाँ। गाड़ी को देखने के बाद हमें यह भी पता चलता है कि गाड़ी का यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा। हाँ। और हमें यह भी पता चलता है कि गाड़ी को यहाँ आने के लिए कितना टाइम लगेगा। एंड बेस्ड ऑन दैट हम इमीडिएटली ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे क्रॉस करना है नहीं करना है। अगर मुझे रोड क्रॉस करना है तो कितने स्पीड से मुझे भागना चाहिए, राइट ना? सो ट्रू। क्या हमारा एवरीडे का हमारा जो स्पीड रहता है सेम रहता है क्या? नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द व्हीकल स्पीड, गाड़ी का स्पीड, गाड़ी कितने दूर है, गाड़ी का स्पीड कितना है। और ये कैसे कैलकुलेशन होता है? ओनली वन सिंगल फॉर्मूला। कौन सा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इक्वल टू टाइम। अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी का स्पीड रहता है किलोमीटर पर आवर्स में, डिस्टेंस रहता है आइदर मीटर और फीट में। गाड़ी का यहाँ से का जो डिस्टेंस है वो शायद मीटर में हो सकता है, हम 100 मीटर बोल दिए हैं। और रोड का जो लेंथ रहता, रोड का जो विड्थ रहता है वो 50 फीट, 90 फीट, 100 फीट रहता है, तो इट इज इन फीट। और हमें ये भी मालूम नहीं है कि 1 मीटर में कितने फीट होते हैं या 1 फीट का कितना मीटर बनता है। अभी वो किलोमीटर पर आवर्स को हमें कन्वर्ट करना है फीट पर सेकेंड्स में, बिकॉज हमारे कैलकुलेशंस आएगा मिली सेकेंड्स के अंदर, तो हमें मिली सेकेंड्स में कैलकुलेट करना है। सो दिस टाइप ऑफ वेरी बिग कैलकुलेशंस वी आर डूइंग। इट टेक इसका पूरा कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो फुल स्केप के फ्रंट एंड बैक दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। एंड इट टेक मिनिमम 10 to 15 मिनट्स टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल। तब तक हमारी गाड़ी 10 बार आके चली जाएगी। वो साइकिल भी अगर हम लेते हैं छोटे बच्चे की, वो भी 10 बार आके चली जाएगी, राइट ना? हाँ। सो दैट मच डिफिकल्ट कैलकुलेशंस हमारा ब्रेन जस्ट गाड़ी को देखने के बाद इंस्टेंटली कर देता है, बिकॉज आवर ब्रेन कैन कैलकुलेट 1 ट्रिलियन कैलकुलेशंस पर सेकेंड। एंड इतना फास्ट ब्रेन हमारे पास है। एंड इसीलिए मैंने आपको ये बताया अभी सुजल कि अगर हम चल सकते हैं, बोल सकते हैं, खेल सकते हैं और रास्ता क्रॉस कर सकते हैं, दैट मीन्स वी आर जीनियस। और मैथमेटिक्स इज बाएं हाथ का खेल है हमारे। अगर मैथमेटिक्स का डर लगता है तो देखना, यही खाली सामने आपके सामने आंखों के सामने रखना है कि देन हाउ कैन आई क्रॉस द रोड। अगर मैथमेटिक्स में मुझे प्रॉब्लम है देन आई कैन नॉट क्रॉस द रोड। अगर मैथ्स में मुझे प्रॉब्लम है तो आई कैन नॉट थ्रो बॉल और आई कैन नॉट कैच द बॉल। मैं किसी को विकेट नहीं ले सकता बॉल थ्रो करके, या किसी का कैच भी नहीं ले सकता, राइट? So this way it is Right. there. So it is related to maths sphere, and I think आपको 2 evidences मिले हैं आपके ब्रेन को, because brain is only believing on after evidence. So you got 2 evidences, you can try the calculations कितना बड़ा होता है। I guarantee इसमें से बहुत सारे लोग घर जाने के बाद ट्राई करेंगे
एंड आई एम श्योर कि बड़े बड़े मैथमेटिशियंस भी वहां पे अटक जाते हैं, बिकॉज जो कैलकुलेशंस हम करते हैं इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. Yeah, teachers made mathematics difficult. Actually, routine वैसा ही होता है. They cannot go beyond the curriculum. उनको जैसे सिखाया है, based on that they are teaching, and they are immediately connecting to the formulas and all these things. So that's why somehow it is there, and everything is left brain friendly. पूरा लॉजिक ही यूज किया जाता है. मैजिक नहीं मिलेगा अगर हम लॉजिक यूज करेंगे. एंड लाइफ में अगर मैजिक चाहिए, मैथमेटिक्स में मैजिक चाहिए, तो वी हैव टू यूज बोथ साइड्स ऑफ ब्रेन्स. दोनों को कर कंबाइन करके हम यूज करेंगे, देन एंड देन ओनली इट इज पॉसिबल. बिकॉज व्हाइल क्रॉसिंग द रोड हम कभी भी लॉजिक नहीं लगाते हैं. ऑल डिसीजंस आर हैपनिंग इंस्टेंटली, एंड दैट मैजिक इज हैपनिंग बिकॉज आवर बोथ ब्रेन्स आर वर्किंग टुगेदर. और नेचुरल है. या थैंक यू वेरी मच. एंड नाउ आई एम कमिंग टू योर पॉइंट कि मेरा बचपन कैसा गया. It is a heart-touching story for me. Yeah, it's very easy, like a flow of water flow. Natural रहता है ना. So be natural, learn naturally, and present naturally. नेचर का एनर्जी, उसके लिए कोई मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं रहती. It's flowing naturally. So let us come to my मेरा बचपन का स्टोरी. मैं एक रूरल एरिया से हूँ. अभी भी मैं मेरे गांव में बैठा हूँ. जस्ट 5 days बिफोर आई शिफ्टेड टू माय नेटिव प्लेस. एंड ये सांगली डिस्ट्रिक्ट में तासगांव तालुका के अंदर आता है. तासगांव से 9 किलोमीटर अवे विसापुर करके मेरा गांव है, विलेज है. एंड मेरा बचपन पूरा इधर ही आ गया. अप टू 10th standard I completed my studies here only. First standard to 4th standard it was in ZP school, Jilla Parishad Shala. And after that I jumped to high school. And रईस शिक्षण संस्था का यहाँ पे एक स्कूल है, RS माने पाटिल विद्या मंदिर विसापुर. और स्कूल में मेरा 10th तक का स्टडी हो गया. आफ्टर दैट इन 10th I achieved 83.14 and that was my record here. That was the first record in my life, that from 1957 to 1990 I was the highest in that school. So that was one record. And in board merit also I was there in my center merit, तालुका मेरिट. देन इन 11th standard and 12th standard मेरा सांगली में हो गया. इट इज डिस्ट्रिक्ट प्लेस. डेक्कन एजुकेशन का विलिंगडन कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस. तो वहां पे मैंने 11th and 12th साइंस कर दिया. एंड आफ्टर दैट आई कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग डिग्री BE फ्रॉम द Walchand College of Engineering, Sangli. That was just opposite to my junior college. Just एक रोड बीच में हैं दोनों. So that was my dream, and I used to take photographs when I was in 11th standard and 12th standard. I used to visit that Walchand College of Engineering, and वहाँ पे ग्राउंड पे हम खेलते थे. And I used to take photographs कि मुझे यही कॉलेज में इंजीनियरिंग करना है. So that was one of the great tragedy. मेरा बचपन में, मैं जब छोटा था, आई थिंक आई वॉज इन 1st standard, 5.5 years, एंड मेरे पापा, उनका डेथ हो गया. एंड आफ्टर दैट मेरा पूरा मम्मी एंड मी, हम मेरे 3 sisters, हम सभी लोगों के लिए इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव. क्योंकि यहाँ पे सब लोग, मेरी मम्मी और पापा दोनों भी मजदूर थे. एंड मजदूरी करके घर चलाते थे. थोड़ी सी खेती थी, लेकिन वो खेती से भी ज्यादा कुछ बनता नहीं था. एंड आफ्टर दैट माय मामा सपोर्टेड मी. मेरे 5 में से 2 मामा टीचर थे. उसमें से जो 2 टीचर थे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे पूरे फैमिली को सपोर्ट किया, मेरे मम्मी को एंड ऑल माय 3 sisters.
और उनका शादी ये सब कुछ मैनेज करना, मेरा एजुकेशन के लिए सपोर्ट करना, ऑल दीज थिंग्स दे डिड। और ये सब कुछ करके स्लोली स्लोली मेरा डेवलपमेंट होते गया। 10th स्टैंडर्ड तक माय स्कूल सपोर्टेड अ लॉट। जो रयत शिक्षण संस्था का स्कूल था, वहाँ पे मराठीमध्ये आपण कमवानी शिका जे आहे, अर्न एंड लर्न, सो दैट कंसेप्ट वाज देयर कि मेरा स्कूल का खेती भी था, ऑलमोस्ट मोर देन 50 acres, एंड इन दैट दे यूज्ड टू, हमारे जो अदर प्रोग्राम्स थे वहाँ पे हमें प्रैक्टिकल एजुकेशन दिया जाएगा, तो वी यूज्ड टू डू सम वर्क आल्सो इन दैट फार्म। ऐसा करके मेरा 10th तक का स्टडी कंप्लीट हो गया। देन 11th 12th एंड इंजीनियरिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए कि मैं इतना स्कॉलर होने के बावजूद भी मुझे फर्स्ट ईयर में केटी लग गई, एंड आई बिकम अपसेट, क्या करें। आफ्टर दैट इवन मेरे मामा ने भी थोड़ा सा सपोर्ट के लिए मैं कुछ अच्छा काम करना चाहिए, इसलिए उन्होंने सीधा बोल दिया कि हम फेल बच्चों के ऊपर पैसा नहीं लगाते। तो मुझे बहुत बुरा लगा, और ऑफ कोर्स दैट वाज गुड फॉर मी कि तभी तो मैं कुछ कर सकूं, राइट। एंड मैंने मेरा स्टडी चालू किया। उन्होंने वो सपोर्ट छोड़ा नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बोला दैट वाज क्रिएटेड मिरेकल। और वो हर एक के लाइफ में ऐसा कुछ इंसिडेंट होना जरूरी है, राइट ना। तभी तो जब तक धक्का नहीं मिलता ना, तब तक हमारी गड्डी ठीक से रोड पे नहीं आती। तो हम हमारे वर्ल्ड में रहते हैं, हम थोड़ा सा भी अगर जमीन से ऊपर आ गए तो हमें जमीन में लाने के लिए कोई तो ऐसा चाहिए जो डंडा लेके हमारे पीछे भागे। एंड दैट इंसिडेंट सपोर्टेड मी। मैं जो हवा में था कि आई एम अ स्कॉलर एंड ऑल दिस थिंग्स, तो वहां से मेरा पूरा स्कॉलर का भूत चला गया और मैं रोड जमीन पे आ गया। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय स्टडीज एंड ऑल दिस थिंग्स। वहां पे पैसे नहीं थे, वहां से लिमिटेड पैसा मिलता था खाली एजुकेशन पर्पस के लिए। तो मुझे बाकी सब फ्रेंड्स जो एंजॉयमेंट कर रहे हैं, तो फॉर दैट पर्पस देयर वाज नो मनी। देन आई लर्न मैजिक एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग मैजिक शोज। मैंने मेरे ही कॉलेज में पहला मैजिक शो किया, एंड आई कंप्लीटेड माय 100th मैजिक शो आल्सो इन माय सेम कॉलेज, टिळक सभागृह। दैट वाज वन ऑफ द biggest auditorium in my college, and I had my first and 100th show. वहाँ से एवरी सैटरडे, सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे संडे मुझे छुट्टी रहती थी, एंड आई यूज्ड टू कनेक्ट विथ सोशल नेटवर्क्स। तभी से कुछ क्लब्स के और रोटरी क्लब एंड ऑल दिस थिंग्स, दैट वाज दे सपोर्टेड मी। किसी का बर्थडे है, किसी का और कुछ फंक्शन है, तो दे यूज्ड टू गिव मी सम स्मॉल प्रोग्राम्स, और वहाँ से मुझे 100, 200, 500 रुपया मिलता था। एंड दैट वाज इनफ फॉर मी टू रन माय लाइफ, एकेडमिक लाइफ। वहाँ पे एक महीने का खर्चा निकालने के लिए उतना काफी था। सो दैट वे आई एंजॉयड माय कॉलेज लाइफ आल्सो। इवन पेरेंट्स से पैसा नहीं मिला एंजॉय करने के लिए, बिकॉज दे सपोर्टेड मी फॉर द एजुकेशन। एंड ये सब यहाँ से मुझे जो पैसा मिलता था, दैट आई यूज्ड टू यूज फॉर माय एक्स्ट्रा करिकुलम लर्निंग। मुझे साइकोलॉजी स्टडी करने का बहुत शौक था, एंड दैट वाज माय हॉबी। तो उसी के लिए कुछ किताबें खरीदना है, क्या कुछ करना है, तो फॉर दैट पर्पस मैं वो पैसा यूज करता था। मेरे पर्सनल ग्रोथ के लिए मैंने हिप्नोटिज्म सीखा, मैजिक सीखा, तो फॉर दैट पर्पस आई यूज टू हैव दैट मनी। एंड आफ्टर दैट जैसे मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया, आई लैंडेड टू मुंबई, एंड तभी से मेरा प्रोफेशनल जर्नी चालू हो गया। दैट्स इट। या ओवर टू सुजल। क्या सुजल तुझा पुढचा आप- प्रश्न विचार. सर आपका रोल मॉडल कौन था? सॉरी, आवाज नहीं आ रहा है।
He is asking आपका रोल मॉडल आपका रोल मॉडल कौन था? या मेरा रोल मॉडल कौन था? ओके, एक्चुअली मेरे लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो रोल मॉडल हैं। मेरे लाइफ में सबसे पहला रोल मॉडल मेरे टीचर्स थे जब मैंने स्कूल में एंट्री किया था। जब मैं हाई स्कूल में गया, दैट टाइम आई यूज्ड टू स्टडी विथ माय टीचर्स। मेरे घर में बिजली नहीं थी तो स्टडी कहाँ करना है, तो अंधेरे में जो दिया जलता था केरोसिन के ऊपर, तो उसी में हम स्टडी करते थे। एंड इट वाज, उसका जो धुआं आता था वो आंखों में जाके थोड़ा सा पेन होता था। तो मेरे टीचर्स लोगों के साथ फ्रेंडशिप हो गई बिकॉज आई वाज स्कॉलर। तो सब टीचर्स लोग जानते थे। मेरे घर के बाजू में ही हार्डली एक 50 मीटर दूरी पे 3-4 टीचर्स लोग जो बाहर गांव के थे और वहां आके रहते थे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, एंड फ्राइडे सैटरडे दे यूज्ड टू गो टू देयर विलेज। तो ऐसा चलता था। तो आई यूज्ड टू गो देयर, उनके साथ बैठता था और मेरा स्टडी करते रहता था। सो देयर एक्चुअली वो जो टीचर्स लोग थे ना, दैट वाज माय फर्स्ट रोल मॉडल। सेकेंड रोल मॉडल इज कंट्रीब्यूशंस के लिए मैं जो सीखा, दैट आई लर्न फ्रॉम माय मामाज। उन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत सारे लोगों के लाइफ में किया है, नॉट ओनली मी। मेरे लाइफ में तो उनका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने मेरे साथ साथ बाकी सब जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं, उनके बच्चे, जहां जहां पे उनको सपोर्ट चाहिए वहां वहां पे उन दोनों ने सभी लोगों को मनी हो, कपड़ा हो, एजुकेशन के लिए कुछ सपोर्ट हो, गाइडेंस हो, एनी काइंड ऑफ थिंग्स, और वो भी किसी से कुछ रिटर्न लेने का दिमाग में बिना सोच के। दैट इज द रियल कंट्रीब्यूशन दे डिड। एंड वो कंट्रीब्यूशन मुझे मेरे दिमाग में आ गया कि यस, वी हैव टू आल्सो हैव द कंट्रीब्यूशन इन आवर लाइफ। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली जब मैं मुंबई में आ गया, देन आई जॉइंड माय लायंस क्लब, एंड थ्रू लायंस क्लब वी आर डूइंग दिस कंट्रीब्यूशन एंड ऑल दिस थिंग्स। और मैं मेरा पर्सनल लेवल पे भी बहुत सारे जगह पे जाके मैं कंट्रीब्यूशन करता हूँ। तो दैट इज बिकॉज विदाउट कंट्रीब्यूशन हम पैदा हो गया है, दैट इज द फर्स्ट कंट्रीब्यूशन। यूनिवर्स ने हमें दैट हम जिंदा यहाँ पे पैदा हो गए हैं, दैट इज हमारा बहुत पहला कर्जा हो गया। तो वो कर्जा हमें हमारे लाइफ के एंड तक देना ही देना थ्रू कंट्रीब्यूशन। डू एनीथिंग फॉर एनीवन विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न्स। ये मेरा फंडा है कि अगर हम, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वही सिखाता है, लॉ ऑफ रिसीविंग एंड लॉ ऑफ गिविंग। ये दो चीजें जो आती है लॉ में, ये दोनों पैरेलल है। आप गिविंग नहीं करोगे तो रिसीविंग नहीं होगा, राइट? गिविंग नहीं करोगे तो रिसीविंग नहीं होगा, और गिविंग करोगे तो हम क्या, यहाँ पे मैंने जो मेरे लाइफ में सीखा ना, तो उसी में यही एक सीखा है कि हम जब गिविंग करते हैं तो गिविंग करना चालू कर दो, रिसीविंग अपने आप आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा हो रहा था कि मैं गिविंग जिसको करता था उसी से ही मैं एक्सपेक्ट करता था कि मुझे रिसीविंग होना चाहिए। तो वो रिसीविंग करना मैंने जब बंद कर दिया, एक्सपेक्टेशंस बंद कर दिया कि मुझे तो रिसीव करना है, लेकिन मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैंने अगर मान लो सुजल को कुछ दे दिया है तो नो नीड टू वरी अबाउट कि सुजल ही उसको रिटर्न कर ले। सुजल के जगह पे मुझे दूसरा कोई तो आके रिटर्न कर देगा, मानसी के थ्रू मुझे कुछ रिटर्न मिल जाएगा, बिकॉज यूनिवर्स इज क्रिएटिंग लाइक दैट ओनली। आप जितना दे रहे हो उसका 10 टाइम्स आपको रिटर्न मिल रहा है। आज होतं की उद्या, right? So that's the thing, and because of that only I started contributing, and मेरे लाइफ में बहुत सारे नेटवर्क क्रिएट हो गया, सपोर्टिंग हैंड्स क्रिएट हो गए, पिलर्स क्रिएट हो गए। मुझे सपोर्ट के लिए हाथ खाली रेज करना है, सपोर्ट के लिए लाइन लग जाती है। लेकिन आज तक किसी के सामने हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं लगी, नौबत नहीं आई। So that is also great thing. God is creating miraculous life in our life. Yes, exactly.
एक पट्टी झाली आहे. वो दुपारून आलंय ते फवारायला. Can I request everyone to please be on mute? Sujal, can you unmute yourself? Sorry, तुला पण mute केलंय. सर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पूछूं? हाँ हाँ सर आपका जो प्रतीक भैया है वो लड़का है, प्रतीक भैया वो मैजिक कैसे या प्रतीक इज माय सन. थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है. मानसी जी, will you recreate what he is saying? Sure. Yeah, Sujal, सर yeah. go ahead. So सुजल इज आस्किंग कि जो आपके बेटा है, जो आपका प्रतीक, तो उन्होंने मैजिशियन बनने को सिलेक्ट किया, ना कि डॉक्टर या इंजीनियर. तो आपका रिएक्शन कैसा था? मतलब आपने उसको सपोर्ट किया या फिर यू वर अगेंस्ट इट कि लाइक मैजिशियन इज लाइक, मतलब इसमें नहीं है ना, लाइक रेगुलर इसमें नहीं है. सो हाउ वाज योर रिएक्शन टू ही बीइंग अ मैजिशियन? एक्चुअली मैजिक बनने के लिए मैंने ही उसको सपोर्ट किया था, मैजिशियन बनने के लिए. एंड इट वाज नॉट प्री प्लान एक्चुअली. व्हेन ही वाज जूनियर केजी में जब था, एंड तो उसके स्कूल में कंपटीशन था कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन. तो सब लोग कुछ ना कुछ तो बन रहे थे. कोई गांधी जी बना था, कोई नेहरू जी बना था, कोई और कुछ, ऐसा सब कुछ चल रहा था. और हम डिस्कस कर रहे थे कि अभी उसको क्या बनाएंगे. तो मैंने बोला कि ठीक है, आप काम करो, आप मैजिशियन बनो. एंड उसके लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन कर दिया. इज अ वेरी स्मॉल बेबी, छोटा बच्चा था, जूनियर केजी का. एंड उसको थोड़ा सा सिखा दिया कैसे करना है, क्या करना है. आई ट्रेन्ड हिम फॉर 2 days एंड उसको थोड़ा सा परफॉर्म करने के लिए बोल दिया. तो उसने परफॉर्म वेल. तो मैंने बोला कि अभी नाउ यू आर रेडी टू गो फॉर इट. एंड सब बच्चे जाके वहां पे परफॉर्म करते थे, आते थे, खाली स्टैचू बन के खड़ा रहते थे और चले जाते थे, बिकॉज उन्होंने सब लोगों को स्टैचू ही देखा था. तो कोई आता था गांधी जी बन के, गांधी जी का एक स्टैचू का एक्शन करके क्रिएट करके चला जाता था. कोई नेहरू बन के आता था, गुलाब का फूल लगा के. कोई और कुछ बन के, ऐसा करके सब कुछ चल रहा था. कोई ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आए थे, लाइक दैट इट वाज देयर. एंड ये मेरा बेटा वहां पे गया स्टेज पे, हाथ में हमारा जो मैजिक का जो स्टिक रहता है, मैजिक स्टिक, वो लेके गया. एंड he introduced himself कि I am magician, I came here to perform the magic. और किसी को पता नहीं चला कि सच में वो मैजिक कुछ करके दिखाने वाला है, बिकॉज दे थॉट कि he is playing role as a magic, राइट. एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन है तो मैजिशियन बन के आया. और जैसे उन्होंने 1 2 3 करके मैजिक वॉन्ड, हमारा जो मैजिक स्टिक था, ऐसा हवा में कर दिया. और ऊपर से पूरा मैजिक की जो छोटे छोटे जो पत्ते रहते थे, वो सब कुछ ऐसा ऊपर उसके ऊपर आके गिरना चालू हो गया. एंड उसके बाद नॉन स्टॉप क्लैपिंग चल रहा था. एंड वो बंदा एक एक करके, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ऐसा 3 मैजिक्स कर दिया. एंड फाइनली उन्होंने एम्प्टी बैग जो रहता है, वो एम्प्टी बैग दिखाया. एंड फ्रॉम दैट ही डिस्प्लेड द थैंक यू हैंकरचीफ. एंड वहां से वो क्लोज करके बाहर आ गया. ही कंप्लीटेड ओनली 2 मिनट शो, ज्यादा भी नहीं था, ओनली 2 मिनट्स का शो हो गया था. एंड कंटिन्यूसली फ्रॉम हिज एंट्री, जब से उन्होंने मैजिक वॉन्ड फ्लैश कर दिया, तभी से लेके एंड तक उसका थैंक यू आने के बाद भी वो स्टेज से नीचे आने तक पूरा कंटिन्यूस क्लैपिंग चल रहा था. एंड दैट गिव हिम करेज कि अरे यार, यहाँ से तो काफी अच्छा अप्रिशिएशन मिलता है. बच्चों को क्या चाहिए? अप्रिशिएशन चाहिए. बच्चों को चाहिए मोटिवेशन. और वो सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक मिल रहा है, मांगने की जरूरत नहीं है. तो उन्होंने डिसाइड कर दिया कि मुझे अभी आगे सीखना है. एंड दैट टाइम ऑनवर्ड्स, देन सिंस आई वाज आल्सो मैजिशियन, तो मैंने बहुत सारी चीजें उनको सिखाई. अभी आप अगर मेरे वॉल पे जाके देखोगे तो उसका पीसी सरकार के साथ उसका फोटो है.
मुंबई के जितने भी टॉप के मैजिशियंस है उन्हीं के साथ उसका फोटो है। हम जाके उनको 1-to-1 पर्सनली उनको मिलवाए, बिकॉज आई वाज द मेंबर ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडियन मैजिशियंस, एंड बेस्ड ऑन दैट मैं उनको जाके बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स लोग हैं जो मैजिक फील्ड में हैं, तो उनको जाके मैंने मिलवाया एंड उनको बता भी दिया कि अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आपको यहाँ जाना है और यहाँ से सामान परचेस करना है। सो यू विल गेट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आपके दिमाग में अगर आइडिया भी आता है मेरे साथ शेयर करो, मैं आपको सिखाता हूँ कि उससे मैजिक कैसे क्रिएट कर देंगे। सो दैट वे ही बिकम अ मैजिशियन। लेकिन मैजिक एक हॉबी करके हमने लेके गए हैं, इट्स नॉट अ करियर के लिए हमने जब वो 6th स्टैंडर्ड में था तब हमने प्लान किया था कि ही वांट टू बी इथिकल हैकर, एंड 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद स्पोर्ट्स के साथ साथ खेलते खेलते थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज उन्होंने गेन कर दिया। एंड 11th 12th भी, जब से 11th स्टार्ट हो गया तब से पूरा लॉकडाउन ही है, तो 11th ऐसे ही गया, 12th भी वैसे ही गया, राइट, दोनों। बट लेकिन ये लॉकडाउन में हमने क्या किया, वी क्रिएटेड मिरेकल्स। हमने करिकुलम के पीछे बिना भागते हुए वी फोकस्ड ऑन करियर, और करियर के पीछे हमने काम कर दिया। हमने इनिशियली एक बेसिक कोर्स किया एथिकल हैकर का, आफ्टर दैट थोड़ा सा एडवांस लेवल का कोर्स किया, देन ही गॉट कंफर्ट जोन। अभी तो हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी का भी मोबाइल को हैक करना है तो वी कैन डू दैट। अगर मतलब चोरी पकड़ने के लिए, एक्चुअली हैकिंग मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी को कुछ भी मजाक करें, इट्स नॉट ऑथेंटिक, राइट, इलीगल है ये, हमारे रूल्स के खिलाफ है, गवर्नमेंट के रूल्स के खिलाफ है, बिकॉज इट्स हैकिंग इज अ क्राइम, राइट। एंड ये सब कुछ हमने सीखने के बाद देन वी अप्रोच्ड एजेंसीज, ईसी काउंसिल, जो इंडिया में मैंडेटरी है कि ईसी काउंसिल, अगर इथिकल हैकिंग बनना है तो ईसी काउंसिल का सर्टिफिकेशन मिनिमम चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम बेसिक लेवल के वो चाहिए। सो वी अप्रोच्ड ईसी काउंसिल, एंड जब उसका 12th स्टैंडर्ड चल रहा था, सब बच्चे 12th स्टैंडर्ड का स्टडी कर रहे थे, कोई जीआरई का जेईई का कर रहा था, कोई नीट का स्टडी कर रहा था, कोई सीएटी का स्टडी कर रहा था, और हम स्टडी कर रहे थे इथिकल हैकिंग। और दिसंबर हमने डेडलाइन लिया था, दिसंबर 2020। अगर दिसंबर 2020 तक कुछ बनता है तो हम करेंगे, अदरवाइज दिसंबर 31 दिसंबर विल क्लोज दिस चैप्टर, और उसके बाद आपका 12th का स्टडी चालू करना है। दैट वाज आई हैव क्रिएटेड विथ हिम, एंड ही वाज वेरी कंफर्टेबल विद दैट, कि बोले ठीक है पापा आप जैसे बोलेंगे, क्योंकि 2 महीना उनके लिए काफी था 12th स्टैंडर्ड का स्टडी कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि वो रट्टा नहीं मारता है स्टडी के लिए और कहीं क्लास भी नहीं जाता है। ही इज यूजिंग माय ओन स्टडी टेक्नोलॉजी, कि जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, याद अपने आप रह जाता है स्टडीज का। सो दैट वे आई हैव क्रिएटेड, एंड ही इज यूजिंग माय टेक्नोलॉजी सिंस हिज चाइल्डहुड। तो हमने 12th डिग्री ये सर्टिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए दिसंबर में डेट हमने फाइनल कर दिया। पहला डेट में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज ही वाज अंडर 18, और हमें मालूम नहीं था कि उसका क्या प्रोसीजर है। देन दे गाइडेड अस कि आपको एक पेरेंट से कंसर्न चाहिए, और आपका स्कूल जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वहां से आपको रिटर्न में परमिशन देना है कि वी आर अपेयरिंग फॉर हायर एजुकेशन। देन उनके प्रिंसिपल को जाके मिला, उनको रिक्वेस्ट करके वी हैड स्पेशल परमिशन फॉर हिम, और मैंने मेरे तरफ से एक स्पेशल परमिशन दे दी है कि आई एम विलिंग टू, माय सन इज रेडी टू पार्टिसिपेट, एंड फॉर दैट आई एम नॉट हैविंग एनी ऑब्जेक्शन। तो ऐसे 2 ऑब्जेक्शंस हो गए, सर्टिफिकेशन के लिए हमने उनको भेज दिया, एंड फाइनली 27 December 2020 he appeared for the exam, and in first attempt he completed the CEH 11 सर्टिफाइड इथिकल हैकिंग वर्जन 11, जो अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, एंड ही स्कोर्ड 84%, 75 के लिए पासिंग था, एंड ही स्कोर्ड 84% एंड अचीव्ड हिज फर्स्ट डिग्री बिफोर हिज 12th standard. So that way it is there. Now he is a professionally ethical hacker, and very soon he will be onboarding as a director in Genius India Research and Training Institute Private Limited as a head of department of
cyber security. Genius India is my own organization. Yeah. ये है प्रतीक का स्टोरी एंड प्रतीक नोज मैथमेटिशियन, ही इज आल्सो इन कंट्रीब्यूशन, उसको भी कंट्रीब्यूशन करना बहुत अच्छा लगता है. हमने बहुत सारे ऑर्फनेज में जाके उनको मैजिक शो दिखा के उनको एंटरटेन किया है. सो दैट वे ही इज आल्सो इन लिटिल बिट कंट्रीब्यूशन. अभी उसको थोड़ा सा क्या है कि पौधे को सही डायरेक्शन में लेके जाने के लिए हम एक उसको सपोर्ट लाइन देते हैं, राइट. उसको सपोर्ट के लिए एक स्टिक लगाते हैं या उसको धागा कनेक्ट कर देते हैं. तो दैट वे आई एम जस्ट कनेक्टिंग विथ हिम और उनको वो डायरेक्शन देने के लिए मैं उसको कहीं कहीं जगह पे लेके जाता हूँ. आई विल कनेक्ट हिम विथ माय लायंस क्लब. अभी हम रोटरी के लिए छोटे बच्चों के लिए भी, कॉलेज बच्चों के लिए भी लायंस क्लब रहता है. सो वी आर प्लानिंग फॉर दैट आल्सो कि कॉलेज में रोटरी क्लब और लायंस क्लब के साथ हम उसको चैनलाइज कर सके. Yeah. So this way I'm leading him, his life. Just I'm guiding him, not leading. I can't say leading, but I'm just supporting him. जब जहाँ जहाँ उसको support चाहिए वहाँ पे मैं उसको support कर रहा हूँ. I'm not forcing him for the outcomes. Outcome अपने आप आ रहा है. We are just playing the game. So that's the life. I'm done. अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Sujal? I can't see Sujal actually. मोहन जी, मैं ना जब तक हमें सुजल, शायद वो ड्रॉप ऑफ हो गया है, बट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू सुजल्स मदर. हेलो रेशमा. हाँ, अच्छा सुजल, एक मिनट में तुझे आईचा इंट्रोडक्शन देते. सो मोहन जी, रेशमा हमारे लिए एंजल है. शी इज अ एंजल इन आवर लाइफ. शी इज अ हेल्थ अटेंडेंट. शी वर्क्स विद माय मॉम एंड व्हेन माय डैड वाज अलाइव शी वुड वर्क विद हिम एंड शी लिव्स इन आवर हाउस. और उन्होंने सुजल के एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत बड़ा विजन देखा है. उन्होंने अपने बेटे को इंटरनेशनल स्कूल, बोर्डिंग स्कूल में डाला हुआ है. So really, I commend the kind of sacrifices उन्होंने किए हैं, and not even thinking it's a sacrifice because it's for this. और उन्होंने जो विजन रखा है अपने बेटे के लिए और वो जो सुजल अभी फॉलो कर रहा है, तो I would say कि रेशमा is a hero. I see Reshma as a hero for making these kind of decisions. और उन्होंने अपना शॉर्ट टर्म गेन नहीं देखा है इसमें. शॉर्ट टर्म की अपना बेटा अपने पास में, बट अपने बेटे के लिए क्या बेस्ट है और उसके लिए जो भी करना पड़े, जो भी काम करना पड़े, जो भी सैक्रिफाइस करना पड़े, पर अपने बेटे को बेस्ट देना है. और नॉट जस्ट बेस्ट ही, उन्होंने बहुत बड़ा विजन रखा है. आई रियली सैल्यूट रेशमा and just welcome her. Okay, thank you Reshma, love you. I really proud of Reshma because बहुत कम ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि जो सबसे पहले तो बच्चों को अपने से दूर करना नहीं चाहते. Yes. मैंने मुंबई में देखा है कि ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट मम्मी भी बच्चों को गेट तक छोड़ने के लिए जाती है. तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको ओवर कमिटमेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको. पेरेंटिंग में कहीं ना कहीं तो हम फेल हो चुके हैं. एंड यहाँ पे ये सिचुएशन में रेशमा जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं फॉर हर सन कि उसके फ्यूचर के लिए उन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं. आई रियली अप्रिशिएट हर डिसीजन एंड आई एम वेलकमिंग हर आल्सो. और यहाँ पे मैं प्रॉमिस करना चाहता हूँ मानसी जी की सुजल को यहाँ पे अगर कुछ भी उसके फ्यूचर के लिए, एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए सपोर्ट लगे, आई कैन सपोर्ट हिम. मोहन जी, really so grateful. रेशमा, तुला काय सांगायचं? थँक्यू सर, खूप खूप. मानसी दीदींना पण खूप थँक्यू, रुपाली दीदींना थँक्यू आणि सर तुम्हाला पण थँक्यू.
और मोहन जी, एज यू नो कि यहाँ मैं ज्यादा नहीं देना चाहती, पर आपको पता है कि ऐसी जर्नी में बहुत सेटबैक्स आते हैं, बहुत बैकग्राउंड में डिफिकल्टीज आती हैं, और वो सब सब में रेशमा को भी बहुत, दे लॉस्ट देयर फादर लास्ट ईयर, सर लॉस्ट हिज फादर लास्ट ईयर ऑन अ हार्ट अटैक। तो ये बहुत सारी अन्य डिफिकल्टीज भी आई, बट रेशमा स्टक टू हर विजन, और शी जस्ट केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट व्हाट इज बेस्ट, सर not थैंक यू decision in a, not making a impulsive short-term decision, but really keeping her eyes on the vision, larger vision. So really salute Reshma. And Mohan ji, thank you so much for saying that. I think you will, कि आप बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहोगे सुजल के लिए, रेशमा के लिए, और बहुत सारे दूसरे बच्चों के लिए। आप ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, बट ये जो आपने एकदम हार्ट से जो ये ऑफर किया है सुजल के लिए, रेशमा ज्यादा बोल रही है, पर मुझे फील हो रहा है कि उसको कितना सर सपोर्ट थैंक यू मिल रहा है इससे। थैंक यू। हाँ सुजल, ओवर टू यू। थैंक यू सर। I got your thank you, Sujal, and you can connect with me. आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मानसी मैम के थ्रू। She will guide you, support you to reach me. और कुछ भी सपोर्ट लगता है फॉर दिस फ्यूचर एजुकेशन गाइडेंस, सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है कि किसी को मनी का ज्यादा कंसर्न नहीं रहता है, लेकिन कंसर्न कहाँ रहता है, प्रॉपर गाइडेंस का कंसर्न रहता है। करे तो क्या करे, और जाएंगे आज तो कहाँ जाएंगे और कैसे जाएंगे। आगे कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन करेंगे क्या। आज अगर हम देखें तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद भी बच्चे मम्मी पापा को पूछते कि अभी क्या करूं, तो जबरदस्ती से मम्मी पापा को गुस्सा होता है और बोलते हैं कि अभी कुछ तो कर, लेकिन कर, राइट। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर प्रॉपर गाइडेंस, कुछ भी स्टेप्स लेने से पहले एक्सपर्ट्स का सपोर्ट जरूर ले लो, एक्सपर्ट की सलाह ले लो। जो भी आपके एरियाज में एक्सपर्ट्स हैं उनको मिलो एंड टेक देयर सपोर्ट। यही मैं कहना चाहूंगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको हर जगह पे कौन अवेलेबल होगा, रोल मॉडल रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन आपके एरिया में जो भी सपोर्ट के लिए आपको मिलेगा, ओनली थिंग कि he should be expert in that area। हमेशा एक्सपर्ट का ही सपोर्ट ले लो, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सर मैं अगला क्वेश्चन पूछूं? हाँ बोलिए। सर आपने मैथ में जो गेम बनाया है उसके बारे में मुझे बताओ, उसका नाम बताओ। ओके, मैथमेटिक्स में मैंने एक गेम खेला है, गेम बनाया है, दैट इज इन्वेंशन, आई कैन वेरी वेल से। एंड वो इन्वेंशन मैं जब कन्याकुमारी में था, विवेकानंदा रॉक मेमोरियल, तो वहां पे वो एनलाइनमेंट हो गया था। हम जो सोच रहे थे कि ऐसा कुछ कर सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन टेबल के लिए बच्चे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड वहां से मुझे कुछ आइडियाज मिल गया। एंड आफ्टर कमिंग बैक टू मुंबई हमने उसको वर्कआउट कर दिया, एंड विद इन 1 वीक वी क्रिएटेड दैट गेम। गेम का नाम है जीरो रिले। हमने स्कूल में रिले खेला है ना, 4x100 4x50 का रिले रहता है। वहां पे 4 बच्चे ऐसा 50-50 मीटर या 100 मीटर पे रहता है, और एक स्टिक लेके हम भागते हैं, दूसरे के हाथ में देते, दूसरा तीसरे के हाथ में, तीसरा चौथे के हाथ में, एंड फाइनल लाइक दैट इट इज देयर। तो लेकिन यहाँ पे भी वैसा ही रिले है, लेकिन सर्कुलर पोजीशन में है। इट इज 1 to 10, 0 to 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे सर्कल में 9 बच्चे रहेंगे, एक सेंटर रहेगा और एक रनर रहेगा। इसमें सबके हाथ में एक एक नंबर रहेगा। जैसा घड़ी में 1 to 12 रहता है, वैसे यहाँ पे 0 to 9 रहेंगे, एंड सेंटर के हाथ में कुछ नहीं रहेगा, वो खाली रिबिन्स पकड़ के खड़ा रहेगा, जो 0 एंड सेंटर के बीच में रहेगा। दैट विल बी बोनस लाइन। और गेम ऐसे हमने क्रिएट किया है कि 12 स्टूडेंट्स कैन प्ले दिस गेम टुगेदर। 12 बच्चे एक साथ ये गेम खेलते हैं। उसमें 10 बच्चे सर्कल के ऊपर खड़े हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक सेंटर पे है, 11 हो गया, और एक है रनर। तो रनर के हाथ में एक स्टिक रहता है। वो स्टिक रनर क्या करेगा कि आपको जो टेबल चाहिए, वो टेबल के हिसाब से हमने कुछ चार्ट बनाए हैं, वो चार्ट के हिसाब से वो रन करेगा, राइट।
एंड वो पूरा वो सर्कल से घूमेगा, जिसके पास आके वो रुकेगा उसको वो बच्चे ने उसका नंबर बताना रहता है. सो जजेस विल बी देयर और योर टीचर विल बी देयर यार. अदरवाइज 13 नंबर का स्टूडेंट रहेगा जो व्हाइट बोर्ड के ऊपर या ब्लैक बोर्ड के ऊपर या नोटबुक में वो नंबर नोट करते जाएगा. एंड दैट वे ये पूरा गेम चलता जाएगा. हर एक के लिए 3 रूल्स रहेंगे. क्लॉकवाइज अगर हम खेलेंगे तो 3 रूल्स रहेंगे. उसमें 40 टेबल्स क्रिएट हो जाते हैं एंड 45 टेबल्स क्रिएट हो जाते हैं. एंड एंटी क्लॉकवाइज खेलेंगे तो उसमें 45 टेबल्स क्रिएट हो जाते हैं. लाइक दैट 90 टेबल्स एंड 0 एंड 5 के बीच में अनदर 10 टेबल्स. ऐसे टोटल 100 टेबल्स. यहाँ पे 3 घंटा 4 घंटा अगर हम खेलते हैं तो 4 घंटे के अंदर हम 1 to 100 तक के सभी टेबल्स यहाँ पे हमारे क्रिएट हो जाते हैं. आपको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं, मगिंग करने की जरूरत नहीं. जस्ट आंख बंद करके गेम को देखो हमने क्या खेला था और आपके सामने पूरा टेबल आ जाए. So that is the miracle. And beauty of this game is गेम कोई भी खेल बच्चों को अच्छा लगता है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, गेम्स के रूल कितने भी डिफिकल्ट रहेंगे, एक बार हमने खेला तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है. तो ये सेकेंड रूल हो गया. एंड थर्ड रूल, एक बार अगर हमने ग्राउंड पे खेला तो बाद में मेमोराइज भी करने की जरूरत नहीं है. यू कैन प्ले, यू कैन टीच अदर्स एंड एनीथिंग इज हैपनिंग इन वन शॉट. सो दैट इज एक्सपीरियंशियल लेवल प्रैक्टिस हो जाता है. एंड लाइफ टाइम आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल रट्टा मारने की, याद रखने की जरूरत नहीं रहती. तो ये गेम उसका इंटरनेशनल नेम हमने दिया है जीरो रिले. एंड महाराष्ट्र के लिए स्पेशली नाम जो है दॅट इज मैदानी गणित. म्हणजेच मैदानामध्ये जाऊन गणित शिकायचं म्हणून त्याला मैदानी गणित. दैट्स इट. इसमें खाली 6 रूल्स रहते हैं, क्लॉकवाइज के 3 और एंटी क्लॉकवाइज के 3. बहुत सारा सिंपल सा गेम है. अगर कभी टाइम मिला तो मैं इवन ग्राउंड पे नहीं लेकिन मैं बोर्ड के ऊपर आपको समझा सकता हूँ. आई कैन शो यू एंड आफ्टर दैट आप खुद प्रैक्टिस करके मल्टीप्लिकेशन टेबल क्रिएट कर सकते हैं. या इफ यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन. अगला सवाल अगर है तो पूछ सकते हैं. आपका प्रोग्राम स्टडी विदाउट रिमेनिंग ये क्या मैजिक है? स्टडी विदाउट रिमेम्बरिंग आपको बताना है. हाँ. या स्टडी विदाउट रिमेम्बरिंग इज माय ओन इन्वेंशन. मेरा खुद का इन्वेंशन है. याद रखे बिना आपको स्टडी करना जरूरी है. एक्चुअली जरूरी मैं नहीं बोल सकता कि वो होता ही है, बिकॉज मैंने जब स्टडी किया, मैं ब्रेन साइंस का रिसर्च के ऊपर जब काम करता था तो दैट टाइम आई गॉट रियलाइज, मुझे ऐसा रियलाइज हो गया कि रिमेम्बरिंग एंड रिकॉलिंग ये दोनों चीजें ऑटोमेटिक हैं. रिमेम्बरिंग इज ऑल्सो ऑटोमेटिक एंड रिकॉलिंग इज ऑल्सो ऑटोमेटिक. ये दोनों चीजें ऑटोमेटिक होती हैं. अगर वैसे सिचुएशन है तो हमें पूरा साल में रिमेम्बरिंग के लिए सिखाया जाता है. राइट? 5 बार लिखो, जोर से पढ़ो, ये सब कुछ इसीलिए क्योंकि हम उसको याद कर सके. लेकिन रिमेम्बरिंग पूरा साल तक हम करते हैं. एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में हम भूल जाते हैं. हम इसीलिए भूल जाते हैं क्योंकि हमने याद रखा था. अगर हमने हमारे क्वेश्चंस के आंसर अगर याद नहीं रखे होते तो शायद हम भूल नहीं जाते. लेकिन हम एग्जाम के टाइम पे भूल जाते हैं बिकॉज हमने उसको याद रखा. तो फॉर दैट पर्पज सबसे फर्स्ट स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि कोई भी स्टडी करते समय आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. ब्रेन में ऑटो रिकॉर्डिंग सिस्टम है, वो रिकॉर्डिंग करती है. देयर आर 5 सेंसर्स. आंखों से हम देखते हैं, राइट? कान से सुनते हैं, नाक से स्मेल लेते हैं, टंग से टेस्ट लेते हैं एंड टच फीलिंग होता है. ये 5 के अलावा कोई भी सेंसर नहीं है हमारे पास कि जो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के अंदर डाल सके.
राइट ना, फॉर जनरल पीपल। अभी 6 सेंस एंड ऑल दीज थिंग्स वो हर एक का बेबी नहीं है, फॉर दैट पर्पस बहुत सारी चीजें हमें करनी जरूरी है, लेकिन ये 5 सेंसर्स हर एक के लिए परमिशिबल है। तो ये 5 के बिना हमारा कोई इनपुट डिवाइस नहीं है। कंप्यूटर में रहता है इनपुट डिवाइस, वैसे ही हमारा ये 5 इनपुट डिवाइस है, और ये 5 इनपुट डिवाइस से जो भी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं वी आर स्टोरिंग इन आवर ब्रेन। और इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि हम अगर ब्रेन में उसको स्टोर करते हैं, एक बार स्टोर हो गया देन यू कैनॉट डिलीट इट, वी डोंट हैव डिलीट बटन। अभी सवाल ये आता है कि अगर हम डिलीट नहीं कर सकते तो हम भूल क्यों जाते हैं? भूल इसलिए जाते हैं कि भूल का मतलब क्या है मैं बताता हूं एक्चुअली। वहां पे हम भूल नहीं जाते कुछ भी। जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन बहुत बड़ा स्टोरेज है, वो स्टोरेज में हमने सब कुछ रखा है, लेकिन जब हमें एग्जाम के टाइम पे हम क्या करते हैं, कोई क्वेश्चंस हम पूछ लेते हैं, वो क्वेश्चंस का आंसर हमें ढूंढना रहता है। अगर वो हमें जितना टाइम स्पैन है उतना टाइम स्पैन के अंदर अगर हमें उसका आंसर नहीं मिला तो हमें लगता है कि हम भूल गए, हमें लगता है हमें भूल गए, और हम ब्रेन को बताते हैं कि अरे यार मैं भूल गया। एक थॉट आ जाता है कि मैं भूल गया। अगर जैसे हमारे दिमाग में थॉट आ जाता है कि मैं भूल गया, ब्रेन जितने भी सर्च इंजन चालू किया है उसको स्टॉप कर देता है। एंड आफ्टर दैट वी आर जस्ट ट्राइंग टू थिंक और चीज बहुत दूर चली जाती है, और फाइनली हम परेशान होके आंसर शीट सबमिट कर देते हैं, क्लासरूम से बाहर चले जाते हैं और आपको याद आ जाती है अरे हाँ इसका आंसर ये था, और 5 मिनट रुकना चाहिए था ताकि हम लिख सके। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आप 5 मिनट के जगह पे 5 घंटा भी अगर उधर बैठेंगे तो भी आपको वो चीज याद नहीं आएगी, क्योंकि आपने सर्च इंजन स्टॉप कर दिया है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप टेंशन लेके बैठे हैं, स्ट्रेस में ब्रेन आपका सपोर्ट नहीं करेगा। जो स्पीड आपको चाहिए ब्रेन का सर्च इंजन के लिए, सर्च ढूंढने के लिए, वो नहीं मिलेगा। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमने डेटा इसी के अंदर डाला है, जो डेटा हमने ब्रेन के अंदर डाला है, वो डेटा हमें रीऑर्गेनाइज करना जरूरी है। एक बार रीडिंग करो और 3 बार उसको रीऑर्गेनाइज करो। कितना? एक बार रीडिंग करो, 3 बार रीऑर्गेनाइज करो, आपको आराम से 90+ मिल जाएगा। आपको रट्टा 10 बार भी मार देंगे तो भी 90% मिलेगा, उसका गारंटी नहीं है। लेकिन एक बार रीड करो और 3 बार उसको जो भी रीड किया है, जो डेटा अंदर गया है ब्रेन के अंदर, ऑलरेडी गया है, उसको खाली रीऑर्गेनाइज करो। सो लर्न हाउ टू रीऑर्गेनाइज द डेटा, यू कैन अचीव 90%। और इसी के ऊपर ही मेरा पूरा कोर्स चलता है, ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे उसी के ऊपर मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है। मैं किसी को फोर्स नहीं करता कि आपको रट्टा मारना है, याद रखना है, याद नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। एंड स्टडी विदाउट रिमेम्बरिंग, एक घंटे का 3 दिन का प्रोग्राम रहता है। 3 दिन के प्रोग्राम में बच्चा ही कैन क्रिएट मिरेकल्स की कोई भी अननोन लेसन, अननोन बुक, कोई भी स्टैंडर्ड का बुक लेके उसको खुद स्टडी कर सकता है, एंड ही कैन आंसर योर क्वेश्चंस। वहां पे टेस्ट भी रहते हैं कि आंसर विदाउट थिंकिंग, क्योंकि यहाँ पे ब्रेन साइंस का रिसर्च आता है कि इफ यू आर रिमेम्बरिंग एनीथिंग यू कैनॉट रिकॉल इट विदाउट थिंकिंग। आपको सोचना पड़ेगा ही, इसलिए एग्जाम के लिए हमें सोचना पड़ता है आंसर्स को रिकॉल करने के लिए, क्योंकि उसको हमने स्टोर करके रखा है, राइट। अगर हमने स्टोर करके नहीं रखा होता, उसको रिमेम्बरिंग करके नहीं रखा होता तो आपको थिंकिंग करने की जरूरत नहीं। एक एग्जांपल करके हम बताते हैं कि देखो अभी जितने भी स्टूडेंट्स या पेरेंट्स रहेंगे वो आपके अपने बच्चों को, या बच्चे खुद को क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लास्ट ईयर का सिलेबस में मुझे इंग्लिश में 5 नंबर का लेसन कौन सा था? नोबडी कैन आंसर। लेकिन अगर उनको यह बताएंगे कि आमिर खान का जो छोटे बच्चे वाला एक मूवी था, आमिर खान का एक जो मूवी था एजुकेशन के ऊपर, कि एक छोटा बच्चा रहता है, उसको कुछ पढ़ने लिखने में बहुत दिक्कत होती है। किसी को नाम याद है, मालूम है? तारे जमीन पर। वाह, तारे जमीन। अभी यहाँ पे सोचना नहीं पड़ा,
ये रिकॉलिंग ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि तारे जमीन पे भी हमने किसी ने रट्टा नहीं मारा था, उसको हमने रिमेम्बरिंग नहीं किया था, इसलिए रिकॉलिंग फास्ट हो गया। एंड दिस इज द नेचुरल प्रूफ कि रिकॉलिंग तभी आएगा जब वहां पे थिंकिंग नहीं होगा। सो रिकॉलिंग शुड हैपन विदाउट थिंकिंग। अगर वो करना चाहते हैं तो आपको रिमेम्बरिंग छोड़ना पड़ेगा। तो स्टडी विदाउट रिमेम्बरिंग, तो रिकॉलिंग ऑटोमेटिकली आपका फास्ट आ जाएगा। That's it. Anything else? ये हो गया मेरा स्टडी विदाउट रिमेम्बरिंग के बारे में। यहाँ पे आपको कुछ नहीं है, खाली स्टडी हम जो कर रहे हैं ना, अभी किसी ने तो क्वेश्चन किया कि हाउ, तो नेचुरली इसके पहले जो मैसेज आया था कि जैसे पानी का फ्लो चलता है वो ऑटोमेटिक होता है, वैसे नेचुरली कर लो। रीडिंग करना है आपको, रिमेम्बरिंग करने की जरूरत नहीं है। जस्ट डू यूर रीडिंग, वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको अंडरलाइन करो, एंड आफ्टर दैट मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज रीऑर्गेनाइजिंग द डेटा। आपको रीऑर्गेनाइजिंग डेटा में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिवीजन अगर करना है तो कब करना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हमारे बच्चों को स्कूल से ज्यादा कुछ ठीक से नहीं मिलेगा, इसलिए हम क्लासेस में भेजते हैं, ट्यूशन लगवाते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है कि जिस दिन स्कूल में जो सिलेबस हो गया है, क्या सेम सिलेबस आपके बच्चे का क्लास में होता है? अगर नहीं होता है तो स्कूल में जो हो गया उसका डेटा ऑर्गेनाइज नहीं हो गया, रीऑर्गेनाइज नहीं हो गया। क्लास में कुछ अलग हो रहा है, स्कूल में कुछ अलग हो रहा है। तो वहां पे उल्टा हमारे बच्चों के ऊपर का जो प्रेशर था, बर्डन था, वो एक्स्ट्रा बढ़ गया, डबल हो गया, क्योंकि उसको ये भी डेटा ऑर्गेनाइज करना है, ये भी डेटा ऑर्गेनाइज करना है, तो स्कूल का भी करना है, क्लास का भी करना है। और ये दोनों भी डेटा ऑर्गेनाइज जो करना रहता है, दोनों भी डेटा वो ऑर्गेनाइज नहीं करता। नॉर्मली स्कूल और क्लास में होमवर्क दिया जाता है, और होमवर्क का कंसेप्ट ये है कि सेम डे का होमवर्क सेम डे होना चाहिए। अगर सेम डे का होमवर्क सेम डे नहीं होता है तो वहां पे यू विल बी लूजिंग अराउंड 80%, मोर देन 80% इन 24 आवर्स। इसलिए पहला रिवीजन 10 मिनट के अंदर होना चाहिए। मतलब मैं अभी स्टडी किया या मैंने जो स्पीच दिया है उसका अगर आपने रिवीजन कर दिया, खुद कुछ नोट्स लिखा के मोहन ने क्या क्या बताया था उसके बारे में आपने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन क्या करेगा, रीप्रोसेसिंग के लिए कर देगा, एंड योर ब्रेन विल टेल कंप्लीट स्टोरी के क्या क्या हो गया क्या नहीं हो गया। 10 मिनट के अंदर मैंने ब्रेक करने के बाद, क्लोज करने के बाद 10 मिनट के अंदर अगर आप ये करते हैं तो मैं जो भी बताया है वो मोर देन 90% आपके ध्यान में रहेगा, एंड यू कैन शेयर विथ एनीवन। अगर आपने वो नहीं किया अभी सेशन कंप्लीट होने के बाद, तो विद इन 1 आवर यू विल लूज 50% वॉट एवर आई सेड, एंड विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स यू विल बी लूजिंग 82%। और ये प्रूवन है। अगर 82% हमारे चला गया तो बचा कितना, 18%। और हमारे सभी बच्चे आज 18-20% का स्टडी लेके उसी के ऊपर रट्टा मार के 80% एंड 90% मार्क्स ले रहे हैं, राइट। लेकिन क्या उनका स्किल का डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। स्किल के बारे में मैं एक बताना चाहता हूँ, उसके पहले मैं ये बताता हूँ कि अगर यहाँ पे खाली ये रिवीजन भी अगर 10 मिनट का और 24 आवर्स का अगर हम करेंगे, और आज आपका बच्चा जितना स्टडी कर रहा है उसका अगर 50% भी स्टडी करेगा ना, फिर भी आपका बच्चा 90+ में जाए। अगर आपके बच्चे को आज 20% लेके अगर 60% भी मिल रहा है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आज अगर आपके बच्चे को स्टडी करके रट्टा मार के अगर 60% भी मिल रहा है, 70% भी मिल रहा है, तो आज जितना स्टडी कर रहा है उससे आधा स्टडी करने के बाद भी आपका बच्चा 90+ में जाएगा, अगर ये सिस्टम फॉलो करेंगे। एंड सिंस दिस इज साइंटिफिक सिस्टम, ये रिजल्ट सबको मिलता है। 40% का बच्चा भी रहेगा उसको भी मिलता है, 70 के लिए भी मिलता है, और 90 वाले के लिए भी सेम रिजल्ट मिलता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि अच्छा बच्चा है, वो अच्छा स्टडी कर रहा है, अच्छा क्लासेस लगवाया है तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, नथिंग लाइक दैट। आपको चलना आता है, यस, बोलना आता है,
यस, खेलना आता है, यस, रास्ता क्रॉस करना आता है, यस, देन यू आर क्वालिफाइड. चाहे आज आपको कितना भी परसेंटेज मिले, यू आर क्वालिफाइड टू अचीव 90%. दिस इज माई रिसर्च एंड इन्वेंशन. और आज तक मैंने बहुत सारे लर्निंग डिसेबल बच्चे जो स्कूल ने बच्चों को थ्रो किया था कि यू आर नॉट फिट फॉर नॉर्मल एजुकेशन, ऑर्डिनरी एजुकेशन, ऐसे बच्चे आज मेरे मेरे मेरिट में है, 85 प्लस 90 प्लस में है. एक बच्चे का स्टोरी जस्ट मैं एक इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूँ जस्ट 30 सेकेंड्स में कि कांदिवली का एक बच्चा है, प्रियांशु ठाकुर, मैं नाम के साथ बताता हूँ. 9th स्टैंडर्ड में मेरे पास आया था. मैथमेटिक्स में 3 और 4 मार्क्स मिलते थे. बच्चे ने इतना मिरेकल कर दिया है. आज 10th स्टैंडर्ड में तो उन्होंने क्लास भी मैथ्स के छोड़ दिए थे. 11th एंड 12th कॉमर्स लिया विथ मैथमेटिक्स. एंड आज लास्ट टू लास्ट ईयर ऑल ओवर इंडिया IIT क्रैक किया, ऑल ओवर इंडिया IIM क्रैक किया, एंड इंडियाज नंबर 1 IIM अहमदाबाद. He got 18th rank, 18th rank in India. एंड अभी वो IIM अहमदाबाद में स्टडी कर रहा है. तो दिस इज पॉसिबल. हमारे खाली मेंटल ब्लॉक्स के ऊपर थोड़ा सा काम करना है एंड साइंटिफिक वे मिल गया तो बच्चे आराम से चले जाते हैं. दिस नॉट अ बिग डील फॉर एनीवन. थोड़ा सा उनको क्या है की मराठीमध्ये म्हटलं जातं की दिशा बदलली की दशा बदलते. राइट ना, चेंज युअर डायरेक्शन, एंटायर थिंग विल चेंज इन आवर लाइफ. सो दैट्स द थिंग. मोहन जी, वी आर स्पेल बाउंड कि आपने पहले तो जब मैजिशियन थे आप मटेरियल्स के साथ मैजिक करते थे, फिर नंबर्स के साथ मैजिक करे, पर अभी आप लोगों के लोगों को ट्रांसफॉर्म करके लोगों पे मैजिक कर रहे हो. एंड दैट इज गॉड्स वर्क, रियली डिवाइन. इट्स माय प्लेजर, इट्स अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम माय लाइफ कि मेरे पास जो है मैं कम्युनिटी के लिए दे रहा हूँ. अभी हमको कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा आपके साथ मिलके कि क्या इतना आप मतलब जो प्रैक्टिकल टिप्स टेक्निक्स दे रहे हैं राइट और लेफ्ट ब्रेन इंटीग्रेशन का, so how do we really through that how do we work out some kind of a synthesis process जहाँ पर we can actually through vibration we can integrate the right and left brain. मुझे लगता है आप सिंथेसिस शुरू करेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा एंड देन what I am feeling it can become very easy, the integration can become very easy the moment we go on vibrational level. Sure, 100%. तो मुझे लगता है कि most valuable person or the person who can really do it is you. So I really invite you to experiment more with synthesis and come out with your own synthesis process. Really. वो कैसे right or left brain का synthesis? See, right now we are talking about techniques, but if we can go deeper into कि हमारा जो ब्रेन है ना उसकी एल्केमी चेंज हो जाए. Sure, exactly. तो एकदम मैजिक हो जाएगा ना. Right. And I'm really inviting you to regularly, go into synthesis. और आप एक टेक्निक इसका निकालिए आप. Vibrational method for integration. So for that, of course, Shivo, it's a great enlightenment. We can very well say that you are sharing now, and with your support and Mansi's support, of course, we can create that. Yeah. So what I am suggesting you, maybe let's begin with Akhand Diya. That's what I was thinking. Start to, take up, I don't know how we'll take up the issues, but maybe the path will appear. We don't know right now. Okay. But the path will appear. Okay. Sure. We can work on it. Details for Akhand Diya. हमारा ये डेली साधना, हाफ एन आवर डेली साधना प्रोग्राम रहता है. आप जब भी अटेंड कर सकते हो. एंड आई एम श्योर एज शिवो हैज
really spoken on this. A new way will come. Yeah. Goddess for this integration, I feel, is Ma Bagulamukhi. Wow. Wow. You should really connect with her. She Yeah. will show you many more ways of this integration. Okay. And she'll give you techniques after techniques. See, once it has happened on vibrational level, no, then the techniques will appear effortlessly. Of course, it is appearing effortlessly to you also. But Right. you know, it can begin to happen to people also effortlessly. Yeah. That is most important actually. For me, effortless for me is not most important. That effortless for everyone is most important. Right. So Shivu, you're saying they will be able to connect to the creativity also that Mohan is connecting to, right? Yeah. So Mohan because- is already in that space, Right. He's already in that space. Right. in that creative space. But if he comes to know the vibrational roots of his space, then he can begin to teach that. Yeah. Then he goes to one level back, you know, one level behind. Like that would be phenomenal, because even if you look at Ramanujan, he was able to connect to that, to the vibrational, the vibrational energy of that particular goddess. I forget her name right now, but he would connect to that, but he was not able to explain that or bring it to other people. He could bring the techniques, but he couldn't show how to connect to the goddess themselves. And Mohanji, if you could crack that would be the most mind-blowing magic. Right. I need your both of your support for this, and we can create. So, Mohanji, we are with you. So let's begin this journey. It's going to be phenomenal. Sure. Yeah. Okay, thank you very much. And today it was like it was inspiration flowing for everyone, and for Sujal, I feel it was more than inspiration. It was the creation flowing for him, and I was really feeling that he was being created. He was being shaped up, not just inspired. So, Sir, thank you very much for inspiring our heroes. sir, Feel for Sujal and for Reshma as well, Yes, like yeah. encouragement that she's on the right path. Mohanji. Yeah. Shiva, there's a question by Manisha. Can we take that? Yes, please. Yeah. Yeah, Manisha. So I introduced them both. Yeah, so go ahead, Manisha. मोहन सर, एक्चुअली मैं भी जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइल रीडर हूँ और जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग कर रही हूँ आजकल लोगों का, और एनालिसिस भी कर रही हूँ. तो व्हाट आई ऑब्जर्व दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग पैटर्न्स. फर्स्ट इज किनेस्थेटिक लर्नर, and one is audio learner, and third one is sensory learners. Right. So अभी आपने जो बताया कि हम अपने सेंसेस के थ्रू लर्न कर सकते हैं, मतलब we should not remember the things, we can easily recall the things. बट वहां पे जब मैंने स्टडी किया तो देखा कि बच्चों की लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और सेंसरी मेमोरी में थोड़ा बहुत, मतलब 33% का जो हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू, तो जहां जिसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी अच्छी होती है दे कैन रिकॉल इजीली, बट जो सेंसरी लर्नर है वो अच्छे से कर सकते हैं सेंसेस के थ्रू. बट फॉर एन एग्जाम्पल, यदि कोई किनेस्थेटिक लर्नर है तो वो हाथ पैरों से सीख सकता है करके, बट ऑडिटरी लर्नर के साथ ये प्रॉब्लम ये आ रही है सर कि जब तक हम उनको ऑडिटरी समथिंग कुछ प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं तो दे आर नॉट लर्निंग दीज ऑल टेक्निक्स. बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन वैदिक मैथमेटिक्स, एंड आई अभी एक ई कंटेंट के थ्रू हमने एक प्रोग्राम बनाया कि बच्चों तक वैदिक मैथ्स और जो आपने फॉर्मुलेशन और टेबल और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जो बताया वो पहुंचे. बट यहाँ पे हम उसको कैसे, दैट मीन्स हम यदि वो ऑडिटरी लर्नर है तो वो सेंसरी लर्नर सेंसर से अपने सेंसिंग सिस्टम से वो काम नहीं ले पा रहा है. तो डेफिनेटली आई रियली वांट टू जॉइन योर प्रोग्राम, देन हाउ वी कैन डेवलप दिस टेक्निक. मनीषा जी, एक्चुअली मैंने ये नहीं बोला कि सेंसरी लर्निंग करना है. नहीं सर, आप यहाँ पे
Sorry. one Yeah, just please. a minute. So I think what we will do is, Mansi, what we can do is we should have this topic on Adda very soon, Yeah. next week or something, right? So let's continue with this discussion there. Manisha, let's do it there. तो हम लोग we can go in detail और मोहन जी अभी आप आ गए हो ना, अभी हम छोड़ने को तैयार नहीं, अभी हम बार Ranjana, please जरा session जल्दी schedule करना. Ranjana is there? Yeah, Shivu, I don't see her, but I will definitely I will Yeah, put it yeah, in yes, the yeah. thing, and maybe a session with Mohan Mansi ji, for parents. Yeah. मानसी जी यहाँ पे अभी जो मनीषा जी ने जो क्वेश्चन किया था ना, एक्चुअली दिस क्वेश्चन में भी more than 90% people may be having that of questions. Yes, Okay. yes, yes. यहाँ पे जस्ट मैं आपको 30 सेकंड्स में इतना ही बताऊंगा कि लर्निंग स्टाइल कोई भी होने दो, ऑडिटरी है, विजुअल है, किनेस्थेटिक है, और एनीथिंग, ईच एंड एवरी पर्सन इज यूजिंग 5 सेंसर्स टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. ऑडिटरी वाला भी कानों से सुनेगा, आंखों से देखेगा, राइट ना, टंग से टेस्ट करेगा, हाथ से टच करेगा, फील करेगा, और नाक से स्मेल करेगा. देयर इज नो एनी अनदर सिस्टम. ऑडिटरी के लिए ये सिस्टम है, विजुअल के लिए है, किनेस्थेटिक के लिए है. माय क्वेश्चन इज, आपने जो मेमोरी के रिलेटेड बोला कि लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड ऑल दिस थिंग्स, यहाँ पे मैंने जो टेक्नोलॉजी बताया है कि डेटा को रीऑर्गेनाइज करो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मैं बताता हूँ कि आई वर्कड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज आरटीजीएस एंड एनईएफटी डेटा सेंटर हेड, नेशनल हेड था. तो पूरा इंडिया का ट्रांजेक्शन मेरे सर्वर से चलता था. तो आप किसी भी इंजीनियर को पूछेंगे कि ये डेटा इतना फास्ट कैसे मूव होता है, तो वहां पे एक चीज रहती है कि हम डेटा को इंडेक्सिंग करते हैं, और इंडेक्सिंग करने से जो स्पीड है वो 100 टाइम्स बढ़ जाता है. तो सेम थिंग डेटा ऑर्गेनाइजेशन में करना है कि हमने जो भी एक बार रीडिंग में ले लिया है, उसको अगर हम रीऑर्गेनाइज करेंगे तो ब्रेन का स्पीड हमारा 100 टाइम्स से बढ़ने वाला है. तो रिकॉलिंग विल बी फास्टर, 100 टाइम्स फास्टर हो जाएगी. तो दैट्स वेयर आई एम वर्किंग ऑन इट. एंड वहां पे इसीलिए मुझे ऑडिटरी हो, किनेस्थेटिक हो या विजुअल हो, यहाँ पे मुझे खाली इसी के ऊपर काम करना है कि अभी ऑडिटरी का अगर बच्चा रहेगा तो खाली राइटिंग का हैबिट्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वो राइटिंग ज्यादा नहीं करेगा. वही खाली उसी के लिए प्रॉब्लम आएगा, बाकी किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगा. क्योंकि बच्चों को ऑडिटरी के बच्चों को आता सब कुछ है, लेकिन लिखते नहीं है, लिखने का कंटाल आता है. फॉर दैट पर्पस दे हैव टू फोकस ऑन राइटिंग हैबिट्स. उतना अगर करेंगे और डेटा को रीऑर्गेनाइज करेंगे तो नथिंग वरी अबाउट इट, वो ऑटोमेटिकली आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर ही जाएगा. सर 90% ऐसे रिपोर्ट्स हैं मेरे पास में, हमारे पास में, जो ऑडिटरी लर्नर्स हैं. तो 90% स्टूडेंट्स, या दिस इज द प्रॉब्लम विद 90% स्टूडेंट्स. या एग्जैक्टली बिकॉज आई नो कि अभी करंट जो जनरेशन है ना, तो पूरा जनरेशन आपका ऑडिटरी नहीं आ रहा है, मेजोरिटी इज ऑडिटरी. हमारे अपने जमाने में कैसा था कि मेजोरिटी वाज अ विजुअल. अभी के जमाने में ये सिचुएशन है कि अभी का जितना भी जनरेशन चल आ रहा है, जितने भी बच्चे अभी हैं स्कूल्स लेवल पे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑडिटरी ओनली. और इसलिए पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों को हम एक रूम में बंद करते हैं स्टडी के लिए, और बच्चे आते हैं जहाँ पे हम टाइम पास कर रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं या टीवी लगा के बैठते हैं, वहां पे आके बच्चे बैठते हैं. अभी पेरेंट्स को पता नहीं चल रहा है कि वो वहां क्यों बैठ रहा है, लेकिन उसको आवाज चाहिए, वहां पे रूम में आवाज नहीं मिल रहा है, इसलिए वो यहाँ के बैठ रहा है. तो ऑडिटरी के बच्चों के लिए वो जहां भी स्टडी कर रहे हैं वहां पे आवाज होना चाहिए. उसके लिए एक साइलेंट म्यूजिक चालू करके रख दो, ऑटोमेटिकली उसका कंसंट्रेशन हो जाएगा. एंड फोकस ऑन राइटिंग हैबिट्स, दिस विल सपोर्ट देम. दैट्स इट. Thank you so much, Mohan ji and Manisha, for asking that. I think we can conclude today. Sujal, thank you very, very much for asking very beautiful questions to Mohan ji and Rupali for all the support you have given Sujal. And thank you so much, Mohan. We will meet again. और ये सब सारी बातें और भी लर्निंग स्टाइल्स, और पेरेंट्स को भी बुलाएंगे कि कैसे अपने बच्चों को बेस्ट सपोर्ट करना है.
Thank you very much, Mansi ji and Shivoji, as well as all Quanto families for inviting me on this platform and giving Thank me you, this sir. opportunity to support interview with Sujal. Thank you, sir. very much. Mohanji, Sujal is saying thank you. I don't know. Yeah, thank you, Sujal. I received your acknowledgement, and I'm wishing you the best in your life. आपके जितने भी सपने हैं सब फुलफिल हो जाएंगे. Just create a dream. Thank you so much, Mohanji. We will end the meeting here and we will see you again very soon. Yeah, thank you very much. Thank you, everyone. Thank you, Mohan.